Okay. So last time we have discussed about the laws regarding your ideal gas. I'll revise in short whatever we have studied. Okay. So first of all, we studied that kinetic. We started with the chapter kinetic theory of gases, and I explained you that even if you look at the solid and you find out ki my solid is at rest, but when you look at the small molecules of the solid, what you find out that those Particles are molecules are vibrating. continuously vibrating. Okay, they have some kinetic energy with them. Now, after that, we came to know that this kinetic energy have some relation with the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बोलो. बढ़ता जाएगा. बढ़ता बढ़ता जाएगा. जाएगा. Yes, it will continue to Increase. increase. Okay. Now, in solid, of course, there is a bonding between the molecules, and for that bonding, of course, the potential energy is available there. Okay. Then we started discussing, and we said that whenever we will do an experiment, we'll always consider ideal gas for our experimental setup. And I explained you what are the two conditions required to say some gas is an ideal gas. The first condition was, do you people remember? Volume should negligible. Volume was negligible. Yes, volume of each molecule of the Each gas. molecule. Yes, Yes. it was Yes. it is considered to be negligible, means it is not considered only, in short. And the second condition was there were no 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 force of molecule attraction. interaction of forces attraction. between two molecules. molecules Yes. of a gas. Yeah, so these are the two basic conditions to say some gas is an ideal gas. Okay, so sorry, and then after that we came to the three laws, that is Boyle's law, Charles law, and Gay-Lussac law. And from that particular laws, we came to the state of equation of an ideal gas, which was given by the equation PV is equals to nRT. nRT. So it was PV is equals to nRT. Now, after that, what we decided that, okay, PV is equals to nRT. This is for your ideal gas equation. Let's understand in detail and let's describe it in different ways. So PV is equals to, whatever I'm writing, is it visible, students? Yes. 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 Okay. So PV is equals to nRT. We said that P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is gas constant, and capital T is the Temperature in Kelvin. Temperature. So, as I said, कि जैसे आपको किसी की कैरेक्टरिस्टिक बतानी हो, किसी का स्टेट बताना हो कि कोई कैसा है, तो आप बोलते हो कि वो कितना गोरा है, उसकी हाइट क्या है, या उसके बाल कौन से कलर के हैं, उसके आंखें कौन सी कलर की है. वैसे ही जब आइडियल गैस के स्टेट को बताना होता है कि उसका क्या स्टेट है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो इस इक्वेशन से बताया जाता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस. इसको स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस के नाम से भी जानता है. ठीक है, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन ऐसा भी बोला जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोल्स. डू यू पीपल नो व्हाट इज मोल्स? Given mass upon Given molar mass mass. Molar mass. ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है. गिवन मास अपॉन मोलार मास. Molar mass. करेक्ट. ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलार मास. या फिर अगर नंबर के टर्म्स में बात करो तो अमाउंट ऑफ नंबर गिवन टू द अमाउंट ऑफ N एवोगैड्रो upon नंबर. Na. ठीक है, ये इसमें किसी को Yes. डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को किसी को डाउट है इसमें? Ma'am, Given N number mass of upon molecules molar na. mass, n number of molecules upon Avogadro numbers. Avogadro's number. Yes. जो न्यू लोग आए हैं, अंजलि, वेदांत, समझा आपको ये? इसमें कुछ डाउट है? No, ma'am. गिवन मास अपॉन मोलर मास. सिंपल सा फंडा है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें. अगर आप देखो भी तो इसमें कुछ नहीं है. लाइक आई कैन से कि मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल. तो अगर मुझे निकालना है कि भाई n मोल्स में कितना है और एक अमाउंट ऑफ मास दिया है, तो दिस इज हाउ आई कैन गो, है ना? यही तरीका होता है निकालने. So what you will simply go for? You will go for cross multiplication.
Yes. सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले पे चले जाते हो. नथिंग एल्स इज गिवन, नथिंग एल्स इज डन हियर. ओके, सो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ठीक है, मोलर मास में किसी का भी मोलर मास 1 मोल के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का 1 मोल कितना होगा? आंसर बच्चों, ऑक्सीजन का 1 मोल कितना होगा? 32 ग्राम 32 32 32 ग्राम 32 ग्राम. 32 grams. ठीक है, 32 ग्राम्स इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. yes है yes ना? Yes. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल. ये मैंने बताया था आपको. Yes. Yes. yes If I talk about helium, so 1 mole of helium Four. is how much? 4 gram. 4 grams. 4 grams. So, जो डायटोमिक है उसमें सिंगल का मास नहीं लेना है, उसमें दोनों का मास लेकर 1 मोल को रखना है. Yes. समझ Yes. रहे हो? इसी को Yes. इसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, समझा आपको यहाँ तक? yes Yes. Yes. ठीक है. Yes. ओके, Yes. मैम नाउ यस बोलो अगर ऑक्सीजन बोला तो O2 लेने का कि सिर्फ O लेने का? बेटा. अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन बोला और मोल की Yes. बात कर रहा है तो O2 लेना है, O2 लेने का ना? वो Yes. नहीं लेना है. ठीक है. Yes मैम, समझा. If they said 1 mole of oxygen, सीधा दिमाग में आना चाहिए. 1 mole of oxygen means they are talking about O2. O2. 1 mole of nitrogen means they are talking N2. about N2. Diatomic molecules को दोनों लेना है. Yes, समझा. समझ में आ रहा है? Yes, Okay. yes. So let's move ahead. We know the ideal gas equation as. बच्चों देखो, अगर कहीं पास गया या नहीं समझा तो प्लीज आस्क. Okay, don't leave it. PV is equals to nRT. ठीक है. Now this n can be written as PV is equals to n by Na RT. इतना ठीक है? Yes. ठीक है. Yes. This R is also constant and this Na is also constant, right? Yes. So ये n तो हमारा गिवन नंबर है, ये हम डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए. तो ये मेरा वाला नंबर है जो मैं डिसाइड करने वाली हूँ. बट Na तो एक फिक्स नंबर है. Na का वैल्यू क्या है हमको पता है. Yes. It is 6.02 10 is 23. और R का वैल्यू क्या है हमारा? 8.314 8.314 जूल पर मोल पर Joule केल्विन. per mole per Kelvin. यस, जूल पर मोल पर केल्विन. केल्विन. सो ये दोनों का रेशियो दैट इज PV is equals to N into R by Na into T. This R by Na is given as KB. What it is given as? KB. KB. And इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमैन Boltzmann constant. Constant. Boltzmann constant. Constant. ठीक है. रेशियो ऑफ R टू द एवोगैड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो इन दोनों को डिवाइड करके जो नया कांस्टेंट आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उसको KB से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो योर इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज PV is equals to NKBT. ठीक मुझे है. कांस्टेंट क्या बताता है? क्या हो गया बच्चा? मुझे कांस्टेंट क्या मतलब क्यों कुछ क्या नहीं. बताते हैं? ये कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट आपको गैस के रिलेशंस के बारे में, लाइक सी दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. करेक्ट. हर बार इन दोनों को लेकर चलने से अच्छा बोल्ट्जमैन गिव द रिलेशन की, ठीक है, this constant upon this constant it will always give a constant value. So let's call that constant as KB. That's all. yes yes हालांकि बोल्ट्जमैन have many more theories ahead with this constant. ये constant को लेकर बोल्ट्जमैन के पास बहुत सारी theories है, बहुत सारी. Like अगर मैं आगे जब हायर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, जब हम वहां पढ़ते हैं तो बोल्ट्जमैन को बहुत वैल्यू दी जाती है क्योंकि बोल्ट्जमैन ने बहुत सारी डिस्कवरीज अपने इस केबी को लेकर की है. ओके, सो फिलहाल आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. yes सो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दैट R by Na दैट इज गैस कांस्टेंट और Na का जो रेशियो है वो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज KB देता है. क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. किसी को डाउट है यहाँ तक? सो आपको अब ये चीज याद रखनी है कि कहीं पे भी R by Na लिखा तो सीधा KB के साथ चल पड़ोगे. अच्छा बच्चों, मुझे KB का वैल्यू निकाल के दोगे फटाफट? क्या आएगा जरा बताओ. 8.31 1.38 into 10 raised to minus 23 1.38 into 10 raised to 23. into 10 raised to minus 1 23. point
38. 1.38 into 10 raised to minus 23 Yes, joule 1.38 per into 10 Kelvin. raised to minus 23. so Joule unit per will be Joule per Kelvin. Joule per Kelvin. joule per Kelvin. ठीक है? So simply you have to divide 8.312 by Na, that is Avogadro number, and you'll get this you'll get this value. Okay? So ये clear है यहाँ तक? R by Na is known as Boltzmann constant, and this Boltzmann constant is substituted in the place of R by Na, which gives PV is equals to NKBT. Hope you're clear. No doubt till here. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now let's move ahead. ये तो 3 गैस लॉज मैंने आपको बताई, that is चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-ल्यूसिक लॉ. ये लॉज है ना, सिंपली सारे गैस फॉलो करते हैं. आइडियल गैस भी फॉलो करता है और रियल गैसेस भी ये लॉ को फॉलो करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, तो ये जो 3 लॉज हमने पढ़े, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-ल्यूसिक लॉ, ये हमारे दोनों गैसेस फॉलो करते हैं. आइडियल गैस भी फॉलो करता है और रियल गैस भी फॉलो करता है. इसीलिए मैंने आपको पहले, जब आपने बोला कि उसको गैस लॉ फॉलो करना चाहिए, तो मैंने आपको पहले बोला कि नहीं, आइडियल गैस होने के लिए उससे बड़ा कुछ कंडीशन है जो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर दोस 2 कंडीशंस टू से सम गैस इज एन आइडियल गैस. समझ रहे हो व्हाट आई सेड? समझा व्हाट आई सेड? बच्चों बोलो. Yes. बोलो बोलो. Yes. यस यस. आस्क. मीन्स जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में बोला कि आइडियल गैस मतलब हमको कंसीडर करना पड़ता है, तो आप इधर बोल रहे हो कि मतलब ये दोनों गैस को फॉलो करता है, तो मतलब क्या होगा? हाँ, मैंने आपको बोला कि गैस, मैंने आपको ये क्वेश्चन किया था कि व्हेन यू से सम गैस इज एन आइडियल गैस, ओके, सो व्हाट यू सेड कि किसी ने मुझे आंसर किया कि वो गैस लॉ फॉलो करना चाहिए. फिर मैंने आपको बोला कि नहीं, पर्टिकुलरली आइडियल गैस होने के लिए वो स्टार्टिंग की जो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई वो फॉलो होना जरूरी है. याद है व्हाट आई सेड? समझा? यस. एंड ये जो तीनों गैस लॉज है, ये आपके दोनों गैसेस फॉलो करते हैं. सी, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम आइडियल गैस लेकर काम करते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं और हम फिर उनको आइडियल रियल गैसेस में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर देते हैं और फिर उन्हीं को हम आइडियल गैसेस के नाम से जानते हैं. पर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम आइडियल गैस के लिए करते हैं वो ऑलमोस्ट रियल गैसेस के लिए भी मैच होता है. मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता. समझ रहे हो व्हाट आई सेड? समझा? यस. So this gas laws will be followed by ideal gas also and real gases also. आपके ideal gases और real gases में जो भी experiments किए गए, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला इन दोनों में. मतलब आप आइडियल गैस के साथ थोड़ा काम कर कर अगर थोड़े से मॉडिफिकेशंस आप आइडियल गैस में कर दोगे तो आपको रियल गैस के जैसा बिहेवियर मिल जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? यस. Yes. जिसको ये डाउट था क्लियर हुआ कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था और ये लेक्चर में मैं क्या बोल रही हूँ? यस. ठीक है. सो दिस 3 laws will be obeyed by all the gases. करना चाहिए उनको obey. Okay, whatever equations you are trying to make, they should obey these 3 laws. और हम ये 3 लॉ के साथ ही ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स और ओवरऑल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक लॉज है. ये बेसिक, जैसे आपका फिजिक्स जब आप करते हो तो न्यूटन के 3 बेसिक लॉज होते हैं ना, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, Yes. थर्ड लॉ. वैसे Yes. ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ये बेसिक लॉज हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-ल्यूसिक लॉ एंड ऑफ कोर्स एवोगैड्रोस नंबर. ये सारे ये बेसिक कांसेप्ट्स है जो ओवरऑल फॉलो होते हैं आगे. ठीक है. बट आइडियल बोलने के लिए मैंने आपको जो 2 स्टार्टिंग के कंडीशंस बताए हैं वो कंपल्सरीली फॉलो होना जरूरी है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? Yes. जब आपका Yes. एज छोटा होता है तो नॉर्मली लोग आपको सिर्फ यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि दे शुड फॉलो द गैस इक्वेशन. ओके, बट नाउ एज आई सेड यू हैव एंटर्ड इनटू अ हायर स्टैंडर्ड, सो यू शुड नो कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू हैव एन आइडियल गैस. क्लियर विद द पार्ट? समझा? यस. Yes. Ma'am. ओके, एनी डाउट नाउ? नो. Sure. Okay. यस. These equations are followed by ideal gases as well as real gases. Now, next, what do you think about the temperature? Like if I have a real gas,
हालांकि आइडियल गैस बना पाना इज नॉट दैट इजी. What do you think if I want to make an ideal gas from real gas? What should be done with temperature and volume? क्या कुछ कुछ तो ऐसा करे कि किसी तरीके से वो आइडियल गैस जैसा बन जाए. क्या सोच सकते हो? What you can do? Try to think about something related to temperature or something related to volume. कुछ ऐसा कर सकते हो so that you can convert your ideal gas into real gas. इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का. Increase कर. वॉल्यूम टेम्परेचर को इंक्रीज करना. टेम्परेचर को Yes. इंक्रीज करने से क्या होगा? प्रेशर को कम करना है. मैम वो मॉलिक्यूल्स फर्दर अपट जाएंगे. Yes. So if you have high temperature, ये आपके जेई में या एंट्रेंस में आया क्वेश्चन है कि जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, हमारा सेकंड कंडीशन तो आइडियल गैस के लिए यही है ना कि दिस मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, यस. है ना? Yes. सो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा. कम हो मतलब जाएगा. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी तरीके से तो मैं मेरे रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकती हूँ. प्रेशर के साथ ऐसा क्या करोगे? व्हाट यू कैन डू विद प्रेशर द कम करने का, रिड्यूस करने का. रिड्यूस करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे, मतलब ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर बोल दो आप, ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर, नेग्लिजिबल प्रेशर पे ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और किसके जैसा बिहेव करना चालू कर देते हैं? आइडियल गैस. ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है. हाउ कैन यू कन्वर्ट रियल गैसेस इनटू आइडियल गैसेस? व्हाट यू विल डू विद द टेम्परेचर, व्हाट यू विल डू विद द प्रेशर. तो ये स्टार्टिंग के दो कंडीशंस अगर आपको याद है, वॉल्यूम वाला पार्ट थोड़ा इग्नोर कर दो, वो आप कुछ नहीं कर सकते. बट दूसरा वाला कंडीशन जो है जिससे आप रियल से आइडियल बनाते हो, वो कंडीशन को फॉलो करके अगर हम किसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन एकदम खत्म कर दे तो हम आइडियल गैस को रियल लाइफ में बना पाएंगे. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझा? व्हाट इज इट? यस. Yes, miss. It is not possible, students. Again, that is not possible to have very high temperature or very low pressure. This both things are not possible. Okay, that's why I said that ideal gas जैसा कुछ नहीं बनता. Okay, but टेम्परेचर बढ़ेगा for तो our प्रेशर भी बढ़ना understanding, चाहिए ना. क्या हुआ? इस टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए ना. जरूरी नहीं है ना. It's not necessary. अगर मैं उसको फ्री वॉल्यूम में रखूं तो क्यों मेरा प्रेशर बढ़ेगा? मैंने उसको फ्री वॉल्यूम में रखा है. यस. तो क्यों बढ़ेगा प्रेशर? समझो, प्रेशर कब बढ़ता है? जब मैं उसका वॉल्यूम फिक्स कर देती हूँ. कांस्टेंट तब वॉल्यूम. हमने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? यस. Yes. है कि नहीं? यस मैम. तो आर यू Yes, क्लियर ma'am. टू दिस मच? किसी को यहाँ तक Yes. डाउट है तो Yes, पूछो. ma'am. I said these three laws are applicable to both real as well as ideal. Next I said if you want to convert real gas into ideal gas, there is a way. Either you can increase the temperature or you can किसी Reducing तरीके से the अगर आप pressure. प्रेशर को reduce कर दोगे तो you can convert real gases into ideal gases, है ना? यस. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now, next is, let's go ahead with the part. Now, let's understand the graph of your Charles law, Boyle's law and Gay-Lussac law. So first I'll move ahead with the Boyle's law. क्या constant होता है इसके अंदर? बोलो बच्चों. टेम्परेचर. Temperature constant. Temperature is constant. यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होने वाला है. दैट इज स्लोप एंड स्लोप पॉइंट का जो रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन फॉर फाइंडिंग अ स्लोप पॉइंट? आपको याद है? y is equals to mx plus c. mx plus c. याद है? यस. इसको हम बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं. y is equals to mx plus c. मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये आप आगे पढ़ोगे और आपने 11th में पढ़ा है. ठीक है? y is equals to mx plus c. m आपका स्लोप होता है, y क्या होता है बताओ? This is y coordinate, this is x coordinate, this is intercept, y intercept. है ना? y पे ये
ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और y पे कहां पर इंटरसेप्ट हो रहा है वो ये c रिप्रेजेंट करता है। yes, m इज द स्लोप। जो लोग 11th में नहीं थे उनके लिए दिस इज y कोऑर्डिनेट, y का अपना एक कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और मेरा ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है, सो अगर मुझे इसका इस पॉइंट पे मुझे देखना है तो इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, और ये y पे जहां पे कट रहा है दैट गिव्स मी द c। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? yes, Yes. तो Yes. Yes. इस इक्वेशन का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉयज लॉ का ग्राफ। नाउ इन बॉयज लॉ यू सेड दैट t इज कांस्टेंट। बच्चों यहां तक समझा है सबको? y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और कहां पर y पे कटता है दैट गिव्स यू c, एंड m इज द स्लोप। यहां तक समझा है बच्चों? Yes. बोलो। Yes. yes, ठीक है, Yes. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमारा हम आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एंड ओके लेट्स टेक फॉर आइडियल गैस PV is equals to nRT। n is number of moles, constant होगा, हाँ या ना? yes, Yes. R is gas yes, constant, constant, constant होगा। Constant. Constant. That's yes, PV constant है, constant, slope, Yes. है ना? So P is equals to nRT by V। V. ये ठीक है? yes, ये ठीक है? Yes. Okay. Next is ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा Yes. कांस्टेंट है, मतलब P will be inversely proportional to V, proportional to V, Volume. yes, Yes. है ना? Yes. देखो जरा Yes. इसको अब हम इससे कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को y is equals to mx। समझ लो इंटरसेप्ट 0 है, c is 0, ठीक है, तो c 0 हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? What will be the equation? y Equation equal to will be mx, y Y equals is to equals to mx, mx. जिसमें m जो होता है वो स्लोप होता है जो Slope. कांस्टेंट होता है। बच्चों अगर नहीं समझेगा तो वापस पूछना, ठीक है? m जो होता है वो स्लोप होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है? सो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो आपको क्या लगता है y क्या होगा? y P. किसके जैसा बिहेव करेगा? p, y will be p, p। x क्या होगा? 1 by v, 1 by 1. 1 by V. 1 by V. और m क्या होगा? NRT. constant That होगा, constant होगा. NRT. nRT, मतलब स्लोप विल बी इक्वल टू nRT, है ना? yes, Yes. Yes. बच्चों फिर से समझो व्हाट आई सेड। आई टोल्ड यू वी आर गोइंग मैथमेटिकली। हम बॉयल्स लॉ को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमको देख के समझना होगा कि ये ग्राफ बॉयल्स लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा मैं मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ जा रही हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन हुए हैं दे हैव इवन दोस पीपल कैन आस्क मी, और जो लोग 11th में थे वो भी वापस से पूछोगे नहीं नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, जाने दो, वो पास्ट था। वी हैव अवर प्रेजेंट इन अवर हैंड, वी डोंट केयर अबाउट पास्ट। लास्ट का कुछ याद नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, पूछना है आपको। I said I am going to use the mathematical steps. I said y is equals to mx plus c we are going to take. Okay, where Yes. y is y coordinate, x is x coordinate, m is the slope and c is the y intercept. c का मतलब होता है y पे कहाँ कट रहा है वो पॉइंट। मैंने बोला कि हम स्टार्टिंग में c को 0 ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y is equals to mx। हमें आइडियल गैस इक्वेशन के तरफ से पता है कि PV is equals to nRT होता है। nRT is constant, ठीक है, V नीचे चला गया। अब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर रही हूँ। सो व्हाट आई सॉ, P Y की तरह बिहेव कर रहा है, M जो होता है स्लोप होता है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट nRT है, तो M मतलब nRT के बराबर है। और ये जो X है, ये जो X है, ये जो चेंज होता है, ये हमारा 1 by V है। बच्चों आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, यू कैन राइट दिस एज P is equals to nRT multiply by 1 by V. So nRT is your M and X is your 1 by V. यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक Yes. क्लियर हुआ बच्चों?
Yes. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? Yes, ma'am. No. No, ma'am. आगे बढ़ू? Yes. Yes. Okay. Now, since P is inversely PV is equals to nRT, वापस ये रिलेशन लेती हूँ मैं, and P is equal to nRT, मुझे पता है कि n is constant, n Miss, is your equals voice to is slope. cracking. Ma'am, voice is breaking. Voice break. Okay, okay, रुको. That on. Is it still breaking? मैम अभी भी बच्चों, break is हो it रहा है. still breaking? Okay, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ. बच्चों, अभी ठीक है आवाज? Yes. 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 Yes, ma'am. Okay. So m is equals to slope is equals to nRT. यहाँ तक क्लियर हो आप? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, right. मतलब P is inversely proportional to V रह गया है. Yes. मतलब सिंपल सा फंडा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर P बढ़ रहा है तो V कम होता जाएगा. कम होगा. Yes. 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 3 गैसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. गैस A, गैस B, गैस C. और आपको कुछ ध्यान से देख के बताना है. दिस इज गैस A. गैस A एक T1 टेम्परेचर पे है. गैस B एक T2. अलग अलग गैसेस ले रहे हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर्स को पे कांस्टेंट करके देख रहे हैं. ठीक है. एंड दिस इज गैस 3. ठीक है. दिस इज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होता जा रहा है? बताओ. कम हो रहा है. हो रहा है. कम हो रहा है. देखो प्रेशर कम होता जा रहा है ना, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है. पहले वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर हाईएस्ट था, फिर वॉल्यूम 2 हुआ तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम 3 हुआ तो प्रेशर और कम हो गया, वॉल्यूम 4 हुआ तो प्रेशर और कम हो गया. कैन यू सी दिस? Yes. 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 Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. तो वी हैव 3 गैसेस. हमने गैस A लिया है T1 टेम्परेचर कांस्टेंट करके, गैस B लिया है T2 टेम्परेचर पे रख के, और गैस C लिया है T3 टेम्परेचर पे रख के. अब आपको ये बात तो पता है कि स्लोप किस पे डिपेंड करता है? स्लोप डिपेंड करता है nRT पर. अब ये n और r तो भाई कांस्टेंट चीजें हैं. चलो मैं 1 मोल ऑफ, मैं तीनों गैस 1 मोल ले रही हूँ. n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. 1 तो हट गया, अब ये n तो हट गया, तो स्लोप इज RT. अब r तो मेरा गैस कांस्टेंट है ना? है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? Yes. 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 ध्यान से समझो बच्चों. गैस इज दिस r इज माय गैस कांस्टेंट. मतलब मेरा स्लोप पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करने वाला है? टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बाय सीइंग द ग्राफ, बाय लुकिंग एट द ग्राफ, टेल मी गैस A, गैस B और गैस C, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे कौन है और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे कौन है? इनके स्लोप्स को देखो. स्लोप देखकर पता चल चुका है. स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सिंपल फंडा है. जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे होगा. तो इस ग्राफ को देखकर बताओ कि किसका स्लोप सबसे हाईएस्ट है तो उसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा, किसका स्लोप सबसे लोएस्ट है तो उसका टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होगा. लुक एट द ग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर आंसर करो. T1 का स्लोप है. T1 का lowest है. T1 का lowest है और Even lower. T3 का highest है. T3 highest है. का highest. यस, T1 लोएस्ट है क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका स्लोप Yes. सबसे कम होगा और इसका स्लोप Highest है. Highest है. Highest. तो
T3 is greater than T2 is greater than T1. मतलब हम T1. स्लोप देखकर ये बता सकते हैं कि अगर समझो आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, 3 गैसेस दे दिए, तीनों गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर पे फिक्स कर दिया, गैस ए, गैस बी, गैस सी। आपने उस गैस का, आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं पता गैस के, पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम 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 होता जा रहा है। आपने तीनों गैसेस का ग्राफ बना लिया। फिर आपको आपके सामने वाले प्रोफेसर ने पूछा कि बच्चों बताओ इसमें से हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने बोला लेट मी फाइंड आउट द स्लोप, मैं स्लोप फाइंड करूंगा। जब उसने तीनों का स्लोप फाइंड किया, उसने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो स्लोप से कनेक्ट होता है। अगर स्लोप ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा टेम्परेचर कम होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा मैंने क्या बोला? Yes. So, जिसका स्लोप उसको हाईएस्ट मिला that have the highest temperature, जिसका स्लोप उसको लोएस्ट मिला that have the lowest temperature। ये चीज सबको क्लियर हुई है? Yes, ma'am. सबको कोई Yes. प्रॉब्लम है? Yes. ध्यान से देखो, मैंने सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी है। You have to just look at the things and you have to find out P is Y and B is working like your X, and this is how the relation goes ahead. So if you have some doubt, you just ask me. I'll explain. अच्छे से ध्यान से देखो, y is equals to mx के साथ कंपेयर किया। मिस P वर्सेस 1/V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना? Yes, but decreasing में। Yes. Okay, 1/v you're saying ना? हाँ, तो बराबर है। Yes. ट्राई करके देख लो, ट्राई टू हैव इट। Yes, ग्राफ ma'am, तो straight बच्चों line देखो, आएगा। ग्राफ Yes, ना ma'am. Straight line passing. इस वर्ल्ड में ग्राफ आप हर चीज का बना सकते हो। इवन व्हाट आई एम स्पीकिंग उसका भी ग्राफ बन सकता है। आपके जो पेड़ हिलते डुलते हैं ना, उनका भी ग्राफ बनता है। आपकी बूंदें से गिरती है ना, उनका भी ग्राफ बनता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसका ग्राफ आप नहीं बना सकते। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके लिए बड़े बड़े व्हाट आई कैन से टूल्स यूज किए जाते हैं बनाने के लिए। वी मेक ग्राफ ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर फॉलिंग ऑन द अर्थ, the planetary motions, the comets that are coming inside the Earth's atmosphere. ऐसे बहुत सारी चीजों का ग्राफ हम बनाते हैं, being a physics people. So you can make graph of anything versus anything you want. ठीक है? So it will be a straight Yes, line ma'am. question. देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, otherwise 5 minutes है, we'll go ahead with the next one. और कुछ नहीं समझा हो तो भी पूछ लो। ये स्लोप का कनेक्शन समझा? क्योंकि आगे के दोनों ग्राफ, अगर ये ग्राफ अच्छे से समझा तो आगे के दोनों ग्राफ आपको फटाफट क्लिक होंगे, कुछ टेंशन ही नहीं है। आगे जाऊं? Yes. 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 Yes, ma'am. So the next graph that we are going to study is Gale-Lussac law. बताओ क्या कांस्टेंट होता है? Volume. Volume. So PV is equals to nRT, P is equals to nRT by V. बताओ यहाँ पर क्या क्या It is वर्सेस क्या directly क्या होगा? proportional to T. Temperature. NR अपन V NR स्लोप by V slope आएगा और Slope P आएगा. Y coordinate, T X coordinate. Coordinate. So slope will be inversely proportional to V. In short, you can say, है ना? Yes. 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 तीन ग्राफ ले ले, P वर्सेस T का, 3 गैसेस का, और बताओ मुझे वॉल्यूम किसका ज्यादा हो। P वर्सेस T का ग्राफ बन गया। This is 1, this is 2, this is 3, V1, V2, V3. ठीक है? Tell me. Slope inversely proportional to V बताओ ना फिर से। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मतलब अगर V कम है तो स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा।
मतलब आप अगर आप इन तीनों में से स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा आएगा उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। मींस तो अगर आपका V1 भी क्वेश्चन, कम है, वॉल्यूम 1 कम है सबसे। यस, मींस वॉल्यूम 1 ज्यादा है, वॉल्यूम फिर 1 से ज्यादा है, सोचो, मींस वॉल्यूम 1 ज्यादा है। V1 ज्यादा है और V3 कम में। यस, V3 कम है। Yes. इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। बच्चों अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आती है ना, कि देख के सीधा क्लिक हो जाए कि भाई कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा होगा या कम होगा, ये टेंशन आता है ना, तो सिंपली क्या क्या काम करने का, ये ग्राफ मैंने दिया ना, खुद से एक ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ को है ना नंबर दे दो। ऐसे कुछ कुछ नंबर दे दो और ऐसे 3 लाइंस बना लो अकॉर्डिंगली, और 2-2 पॉइंट्स हर लाइन का लेकर उनके स्लोप, आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, Yes. y2 Yes. माइनस y1 अपॉन, Upon X2 X2 minus minus X1. X1. X2 minus. तो 2-2 पॉइंट्स, यस 2-2 पॉइंट्स हर ग्राफ के लो, 2-2 पॉइंट्स लेकर y2 माइनस y1 इसके लिए निकालो अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तीनों का निकालो। अब सिंपल सा फंडा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे, उसका कम। वॉल्यूम सबसे कम। कम, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप सबसे ऊपर की तरफ कौन है, बोलो, सबसे V3. ऊपर की तरफ। V3. स्लोप का मतलब होता है बेंडिंग, ये लाइन से कितना बेंड हुआ है, तो यस, V3 का स्लोप सबसे ज्यादा ज्यादा है। कौन बेंड हुआ है, V3 इसका V3. स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा। यस, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे सबसे कम। 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 सो V3 सबसे छोटा है, फिर सॉरी, फिर V2 और फिर सबसे V1. बड़ा वॉल्यूम वाला V1। स्लोप का मतलब V1. सिंपली होता है कितना बेंड हुआ है एक्स एक्सिस से, इसका ये मैम, थोड़ा सा बेंड हुआ है, ये ज्यादा हुआ है और ये सबसे ज्यादा एंगल हुआ ऑफ इंक्लिनेशन कितना हुआ? मैम पासिंग फ्रॉम ओरिजिन नहीं रहेगा ना? है। क्या हुआ, ये नहीं slope पासिंग फ्रॉम ओरिजिन नहीं ले रहे हम, नहीं ले रहे, वी आर टेकिंग सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन ऐसा नहीं है, ले सकते हो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, एज आई सेड इंटरसेप्ट इज 0, तो नहीं यू मैम, कैन टेक, नहीं होएगा ना पासिंग मैम फ्रॉम नहीं ओरिजिन। होगा ना, ये Try to एक have टेम्परेचर केल्विन में लिया हमें था। एक पॉइंट पे मीट होगा 273.15 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट, ओके फाइन, करेक्ट, यस, that is true, like at that particular temperature you will find that it have it the volume reduces to sorry, this is pressure versus temperature ना, so temperature अगर pressure versus temperature ले रहे हो, so आपको minus 273.15 पे आपका pressure 0 मिल जाएगा, so that is very मैम true, अगर it will not pass केल्विन from में origin, रहेगा तो ओरिजिन पे मीट करेगा। yes Kelvin में रहेगा तो origin पे मीट करेगा, यस, 0 केल्विन। that's very true। So अगर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो it will go to minus part, and अगर आप केल्विन में लोगे तो it will be an originated graph, Origin, so वो yes. पॉइंट पे आ गए। I am not Yes. taking that into picture क्योंकि बहुत लोगों ने 11th में पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो it will make a confusion to them, इसलिए मैं वो पॉइंट पे नहीं आई फिलहाल। बट what you said ठीक है बच्चों, जो उन्होंने बोला मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ, so that आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि वो क्या बोल रहे हैं। See 11th स्टैंडर्ड में आपके पास एक ग्राफ था इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और प्रेशर को रखकर या फिर वॉल्यूम को, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है फिर, ठीक है, आई हैव केप्ट द वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट। सो उन्होंने एक ग्राफ बनाया एंड व्हाट दे फाउंड दैट अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो माइनस 273.15 पे डिग्री सेल्सियस पे आपका प्रेशर पूरी तरीके से 0 हो जाता है, हालांकि ये पहुंचना नामुमकिन है, और Yes. जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है कि योर प्रेशर रिड्यूसेस टू 0, ओके, ये डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ है बच्चों, मैंने यहाँ पे केल्विन में लिया था, मेन फंडा था ये था, Yes, सो दैट yes. इज व्हाई आई सेड कि Yes. ओरिजिन से पास होगा करके। सो अगर आप डिग्री सेल्सियस का ग्राफ ले रहे हो तो आई एम टॉकिंग डिग्री सेल्सियस में, जब आप टेम्परेचर लेते हो तो आपका ग्राफ इस पॉइंट पर मिलता है, ये जो पॉइंट है बच्चों, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई है, देखो 0। वाई एक्सिस को देखो, Less. जो लोग zero. नहीं है जिनको नहीं पता, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है इस टेम्परेचर के लिए, 0, है ना। सो ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका प्रेशर 0 हो जाता है, उस टेम्परेचर को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट Absolute zero. Absolute. zero Zero temperature. टेम्परेचर।
समझ में आया बच्चों? व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? समझा? Yes. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। अब अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक पॉइंट पर आपका जो प्रेशर है वो 0 हो जाता है। वो टेम्परेचर जिस पे आपका प्रेशर 0 होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. इस टेम्परेचर पर पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, अभी तक नहीं पहुंचे। ठीक है, ऑलमोस्ट बोला मैंने, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि कभी इन फ्यूचर पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, बट अभी तक हम इसके आसपास भी नहीं पहुंचे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी दो चीज के बीच में प्रेशर एकदम ही 0 हो जाए। ये नॉट पॉसिबल वाला कंडीशन है, बट स्टिल पीपल आर ट्राइंग टू गो टिल दैट पॉइंट। ठीक है, यही ग्राफ आप जब केल्विन स्केल में बनाते हो, मतलब ऐसा कुछ। बच्चों मैंने वहां पे इंटरसेप्ट 0 लिया था ना, तो इसीलिए मैंने केल्विन स्केल का ग्राफ बनाया था। दिस इज द ग्राफ। तो यहाँ पर 0 केल्विन से आपका ग्राफ शुरू होता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। समझा? और यही जो 0 केल्विन होता है ना, वो डिग्री सेल्सियस में -2.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग? ये थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे समझोगे तो आपको समझ जाएगा। क्या आपको समझा मैंने ये क्या किया है? बच्चों बोलो। यस मैम। Yes, miss. जो 11th में नहीं थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो 11th में थे मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। अगर उनको भी याद नहीं है तो भी पूछ लो। सो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद प्रेशर 0 हो जाता है, वो कौन सा टेम्परेचर है? बोलो, उसका वैल्यू क्या है डिग्री सेल्सियस में? बोलो बच्चों। -273.15 डिग्री सेल्सियस। 273.15 और उस टेम्परेचर का नाम क्या है? बोलो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। Absolute zero temperature. जो लोग नए हैं उनको समझा? Yes, ma'am. जो Yes, जो लोग नए हैं miss. उनको क्लियर हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत कि Yes. क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली मुझे इस टॉपिक पे नहीं जाना था, बट दिस पीपल आस्क्ड, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बच्चों यहाँ पर आई एम टेकिंग टेम्परेचर इन केल्विन, मैंने इंटरसेप्ट 0 लिया। मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही डिफाइन की थी ना कि आई एम टेकिंग इंटरसेप्ट टू बी 0। सो इंटरसेप्ट 0 कब होगा? जब केल्विन स्केल पे काम करेंगे तब ना। Yes. समझ रहे हो Yes, व्हाट आई एम yes. सेइंग? Yes. यू स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, हम ये वाला स्केल पे नहीं बना रहे, वरना इंटरसेप्ट कुछ अमाउंट हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोला था कि मैं इंटरसेप्ट, मैं सी को क्या ले रही हूँ? 0 ले रही हूँ, मतलब मैं Zero. इंटरसेप्ट 0 ले रही हूँ, है ना? और जब मैं इंटरसेप्ट 0 ले रही हूँ, इसका मतलब मैं कौन से ग्राफ पे, कौन से स्केल पे काम कर रही हूँ? Kelvin On which scale. scale? Kelvin scale. I am working on Kelvin scale, क्योंकि Kelvin Yes. scale 0 से शुरू होता है। समझ रहे हो? Yes. 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 किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? मिस नोट में जो लिखा गया है 7th पॉइंट, उसमें डाउट है मेरे। क्या हो गया? डाउट है 7th पॉइंट पे, नोट्स में लिखा गया। नोट्स में 7 पॉइंट में डाउट है। ओके, Yes. पूछो। But for real gases, pressure must be not equal to height and temperature must not be equal to liquefaction temperature of gas. यस, करेक्ट। क्या प्रॉब्लम हो गया? Low Liquefaction of temperature. temperature. ओके, लिक्विफिकेशन वाला पार्ट पे आई विल कम फर्दर। वो पॉइंट मैंने वहां पे ऐड किया है, बट उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 लॉस। ओके, सो Yes, yes. एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट, डोंट वरी। ठीक है, चलो, ये समझा सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. Yes. ओके, सो लेट्स कम टू द 7th पॉइंट जो तुम लोगों को डाउट है, व्हाट इट इज। सी, when I said that, okay, let me complete the 3 laws, then I'll go. ये क्लियर हुआ यहाँ Yes. तक? Yes. यूसेक लॉ का ग्राफ Yes. क्लियर हुआ कि जिसका स्लोप Yes. सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे Come. ठीक है। अब
नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। अगर गेलियोसिक लॉ आ गया तो चार्ल्स लॉ आ जाएगा। PV is equals to nRT. What is constant here? Pressure. Pressure. Pressure is constant. So volume is equals to nRT by P. है ना? Yes. Yes. So P is directly proportional to T. Temperature. Slope NR by P. Slope NR by P. Slope NR by P. Slope is inversely Slope proportional. is into proportional to pressure. Yes, sir. NR by P. So slope is inversely proportional to pressure. Pressure. सेम ग्राफ बनेगा, बस V वर्सेस T का बनेगा। ठीक है, Yes. बताओ। 3 गैसेस है, P1, P2, P3। किसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और किसका प्रेशर सबसे कम होगा? P1 का सबसे ज्यादा, P3 का सबसे कम। P3 का सबसे कम. P3 का सबसे कम. P1 will be highest and P3 will be Lowest. क्लियर हुआ सबको? ये किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, लेट मी कम टू द पॉइंट नंबर 7 which Shubham asked. I said that 3 laws, that is Boyle's law, Gay-Lussac law and Charles law, ये दोनों फॉलो करते हैं। आइडियल गैसेस भी फॉलो करते हैं और रियल गैसेस भी फॉलो करते हैं। बट आइडियल गैसेस इन लॉ को सारे टेम्परेचर्स और प्रेशर पे फॉलो करते हैं, सारे टेम्परेचर प्रेशर। इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी टेम्परेचर पे नहीं करेंगे, किसी टेम्परेचर पे करेंगे। बट रियल गैसेस जो होती हैं ये सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। ओके, ये कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती? अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, इफ प्रेशर इज टू हाई, तो ये इन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और अगर टेम्परेचर इज सच दैट इट इज टू लो, तो भी ये इन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज व्हाट योर 7th statement said. Yes. And too low means how much low? Equivalent to liquefaction temperature. Actually ये word मुझे लास्ट में समझाना था, इसीलिए मैंने तुमको ये पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं समझाया। लिक्विफिकेशन टेम्परेचर का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे आप अपने गैस को लिक्विफाई करते हो, आप अपने गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि आपका जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वहां पर आपके गैस को लिक्विड में कंप्रेस कर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। Yes, yes. This is called as liquefaction temperature. तो रियल गैसेस इन लॉस को ये दोनों कंडीशन पे फॉलो नहीं करते। They will not follow the 3 laws. But ideal gas का ऐसा है कि कोई भी टेम्परेचर दो, कोई भी प्रेशर दो, if it is ideal, it will follow 3 laws. But real gases का ऐसा कंडीशन है कि अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और टेम्परेचर इतना लो है कि लिक्विफिकेशन पॉइंट पे आ गए हो, कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, तो वो फिर आपके तीनों लॉस को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes. ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, मैंने आज जो भी पढ़ा है मैं उसका शॉर्ट रिवीजन ले रही हूँ, ध्यान से सुनते जाओ व्हाट आई सेड। Summary for today. We went ahead with PV is equals to nRT. ये फास्ट लूंगी मैं। PV is equals to nRT. N can be written as N by Na into RT. I said R by Na is your KB, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? What it is known as? Constant. Boltzmann constant. So PV is equals to KB. Next I said कि this law is followed by both the gases, real gases, ideal gases, as well as real gases. अब यहाँ पे वो पॉइंट मैं अभी इंक्लूड कर रही हूँ। आइडियल गैसेस सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको फॉलो करता है, बट रियल गैसेस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे इसको फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है? Yes. समझा?
बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। सी, आपको पता है गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हाउ वी कन्वर्ट द गैसेस इनटू लिक्विड? हम उसको Increasing बहुत the ज्यादा pressure प्रेशर, and decreasing the temperature. यस, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं ना, क्यों बोलते हैं कि आप जो सिलेंडर वगैरह उठाते हो उसको संभाल के उठाओ, उस पर झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रेशराइज्ड गैस होती है। वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जब वो फूटता है तो क्यों बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर करके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया होता है। सो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन पॉइंट। और इस लिक्विफिकेशन पॉइंट पे जाने के बाद आपका रियल गैस, ये जो तीन इक्वेशन हमने, तीन लॉज हमने पढ़ा ना, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूसिक लॉ, उनको फॉलो नहीं करता। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. समझा? Yes. Yes. उसके बाद हमने तीन ग्राफ पढ़े, बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का और गेल-ल्यूसिक लॉ का। करेक्ट? बॉयल्स लॉ का हमने ग्राफ देखा और हमने देखा स्लोप वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्लोप बड़ा है, टेम्परेचर बड़ा होगा। और ग्राफ क्या वर्सेस क्या था? P वर्सेस V। B. फिर हमने नेक्स्ट देखा गेल-ल्यूसिक लॉ, प्रेशर वर्सेस व्हाट? Temperature. और हमने क्या देखा कि स्लोप क्या था? दिस वाज स्लोप Inversely वाज डायरेक्टली proportional प्रोपोर्शनल टू to V. टेम्परेचर। स्लोप वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. Volume. Volume. एंड लास्ट हमने क्या देखा? Volume लास्ट वन versus वाज, Volume temperature. versus temperature. Versus temperature. और उसमें हमने क्या देखा? व्हाट वी सॉ? स्लोप Slope इज inversely inversely proportional to pressure. pressure. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Yes. Yes. Yes, ma'am. प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लो। Anything which is not clear? That 7th point, is it clear? Your real gas will not follow the three gas laws equations at very high pressure and at very low temperature, that is liquefaction temperature. समझा what I said? Yes. Yes. Yes, miss. Okay. So here we will stop. Just एक बार फिर भी सोच लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, otherwise we will